বেঙ্গল জার্সি পাওয়ার আগে কটা রিজেকশন फेस করতে হয়েছে हम लोग के कलकत्ता मैदान में कि टैलेंट अकेले है ना फिर रीसेंट का टूर्नामेंट था तो पहले नाम था मेरा, तो उसके बाद पता नहीं कुछ इशू हुआ तो उसके बाद मेरा नाम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं था। तो कंपटीशन किसको मानते हो ऑफ स्पिनर बैट्समैन लोकल क्रिकेट पॉलिटिक्स लगता है तुम्हारे क्रिकेट ग्रोथ को हैम्पर किया है कभी या सिलेक्शन में Welcome to Cricket Insiders, a show where you will get to know about domestic and local cricketers. Today in the first episode, we have Vishal Kumar Roy as our guest. Vishal, an off-spinner batsman who has been another name of consistency. कोलकाता फर्स्ट डिवीजन लीग में पिछले लास्ट 3 साल में विशाल ने 115 विकेट्स लिए और 800 रन बनाए। अपनी बंगाल खेलने के सपने के लिए कंसिस्टेंटली 3 लगातार 6 विकेट हॉल लिए और पहुंच गए अंडर 23 खेलने। अब उसकी एक ही जिद है, बेंगल সিনিয়র और इंडियन टीम। আজকে আমরা এই ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ারের স্ট্রাগল জানবো যে খেলার জন্য কতটা ডেডিকেটেড। বসে পড়ুন আর দেখুন আমার শো ক্রিক ইনসাইডার্স উইথ আরিয়ান কেশওয়ানি। হাই গাইজ আ ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ক্রিক ইনসাইডার্স মাই নেম ইজ আরিয়ান। আমি এই শোটা শুরু করেছি লোকাল ট্যালেন্টদের নিয়ে। আমাদের এই শোর শুরু করা একটাই মোটিভ যে গ্রাসরুট প্লেয়াররা আছে যারা গুমনাম রয়েছে এখনো, আর সিলেকশন না হওয়া দুটো আলাদা অ্যাসপেক্ট, বাট ডিজার্ভিং হয়ে বাইরে বসে থাকা এটা কোনোদিনও জাস্টিফাইড না। তো আজকে আমাদের যে গেস্ট আছে ওর নাম হচ্ছে বিশাল কুমার রয়, আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। হাই বিশাল, ওয়েলকাম টু দ্য শো। थैंक यू सो मच। কারেন্টলি ও রাজস্থান ক্লাবের জন্য খেলছে। গত 2 বছর ও রাজস্থান ক্লাবের জন্য খেলেছে, আর এই বছর এ গ্রুপ শ্যামবাজার সাইন করেছে। 4 বা 5 নম্বরে বিশাল ফিনিশ করেছে, তার জন্য খুবই কংগ্রেচুলেশন। তো তোমার আর্লি লাইফের ব্যাপারে বলো, ক্রিকেট কোথা থেকে শুরু করলে? এমনি স্কুল থেকেই স্টার্ট হয়েছে, সবাই জার্নিটা স্কুল থেকেই হয়েছে। আমারও স্কুল থেকেই হয়েছে। আমি ন্যাশনাল হাই স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল, হাজরা রোডে যেখানে আছে, তো ওখান দিয়ে স্কুল খেললাম আন্ডার 14, ওখান দিয়ে ক্রিকেট জার্নি স্টার্ট হয়েছে। তোমার ইন্সপিরেশন কে ক্রিকেট স্টার্ট করার? সবার সচিন হয়, কোহলি হয়, কারোর গার্জেন যদি খেলে সে হয়, তোমার কে ইন্সপিরেশন আমার বাড়িতে আমার দাদা ছিল, দাদা খেলতে চাইছিল বাট দাদা খেলতে পাইনি কই ব্যাপারে, বাড়িতে প্রেশারে। তো তাই জন্যে ও আমাকে নিয়ে গেছিলে একাডেমিতে, ওখানে প্র্যাকটিস করা, তো আমাকে মোটিভেট এখনও করে। তো এমনি বাড়িতে মধ্যে বলে তো আমার দাদাইকে ইন্সপিরেশন নিই। আর এমনি ক্রিকেটে যখন ক্রিকেট দেখতা 2007 ওয়ার্ল্ড কাপ দেখা, T20 স্টার্ট করেছি, তো MS ধোনি আছে, ইন্সপিরেশন থাকে, ওর মাইন্ড কুল, অনেক কিছু। তো পরের বছরের জন্য তুমি তো বিপিএল এর সুযোগ পাওনি, তো তোমার জন্য তো অফ সিজন হয়ে গেছে। তো অফ সিজনের প্রিপারেশন কি এখন চালু হয়েছে? হ্যাঁ, একটু জিম করছি, একটু ট্রেনিং করছি, ধীরে ধীরে করব। আর এই বছর শুরু হবার আগে নিশ্চয়ই কোনো রেজলিউশন নিয়েছিলে যে এত পারফরমেন্স করব, নিজের জন্য একটা বার সেট করেছিলে। তো ওটা থেকে তুমি কত স্যাটিসফাইড ও তো আছে, স্যাটিসফ্যাকশন তো একটু লেভেলে নিজেকে স্যাটিসফ্যাকশন রাখা উচিত, না রাখলে তো তুমি মোটিভেট হতে পারবে না। তো স্যাটিসফাইড আছি, বাট আর ভালো করতে পারতাম এই বছরে, আর ভালো করা উচিত। আর দেখছি পরের বছর ভালো করা যায়। इस साल किस एस्पेक्ट में ज्यादा खटने का सोचा है? दोनों एस्पेक्ट में खटने का कोशिश है, ज्यादातर बैटिंग में है, बॉलिंग में भी है। और इस बार इतना दिन तो सिंगल इनिंग्स का मैच खेला गया है फर्स्ट डिवीजन में, तो डबल इनिंग्स और 3 दिन का क्रिकेट है, तो इसमें फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारे लिए? फिटनेस तो कोई भी लेवल में फिटनेस तो ज़रूरत है ही है, वो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो या 5 दिन का हो, फिटनेस तो आपको चाहिए ही क्रिकेट खेलना है। तो ये डिवीजन वर्ल्ड में सेकंड डिवीजन का जो तुम्हारा फर्स्ट एंट्री था, वो माहौल कैसा था, कितना सपोर्ट मिला था? सपोर्ट तो उस समय वैसा कोई करता नहीं है, अभी भी समय में कोई सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं जब तक आप एक प्रॉपर प्लेयर ना बन जाओ। तो आपको जैसे आपके कोच है और आपके फैमिली मेम्बर है, वही आपको सपोर्ट कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली। आपको कैसा ट्रेनिंग करना है, आपके कोच कैसा है, आपका ट्रेनर कैसा है, तो उस हिसाब से आपको धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी कैसा है, रिएक्ट कैसा कर रहा है आपका बॉडी। तो उस हिसाब से आपको अपने थ्रू करना पड़ेगा। और सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन आने के बाद उस दोनों लेवल में क्या डिफरेंस है इतना कि आज फिर भी जो सेकंड डिवीजन में 900 करता है वो फर्स्ट डिवीजन में आके बैठा रहता है, तो ऐसा इतना क्या डिफरेंस है? माइंडसेट का डिफरेंस है, और आपको प्रॉपर कोई जगह, सबसे बड़ा चीज़ है आपको कि आपको प्लेटफॉर्म कैसा मिलता है।
आप प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप कैसे परफॉर्म करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत से ही तो फर्स्ट डिवीजन सब नहीं खेल पाते हैं, कम ही प्लेयर खेलते हैं, पर स्टार्टिंग में एक दो मैच ही सही, पर बैठना तो पड़ता है। तो जब फर्स्ट डिवीजन में जगह बनाना था और जब विकेट नहीं मिल रहा था मैच खेलने के बाद भी, सोचिए एक दो मैच में विकेट नहीं मिल रहा है, तो उस समय वो मेंटल ब्रेकडाउन कैसा था? मेंटल बैकग्राउंड का ऐसा नहीं है कि आपको अंदर में अपनी खुद को तो बुरा लगता ही है कि जब आप मैच नहीं खेलते हो, या कोई भी, या मैं हूँ या कोई और हो, मैच नहीं खेलेगा तो उसको बुरा लगेगा, बट अपना मेहनत करते रहना चाहिए और वो एक दिन मौका मिलेगा, बस आपको उसमें करना। वो हर एक फील्ड में है, आपको जब भी मौका मिले आपको परफॉर्म करना है। ऐसा एक फील्ड है, एक क्रिकेट, जो आपको परफॉर्मेंस करना ही है, आप बिना परफॉर्मेंस का नहीं खेल सकते हो। तो बेसिकली हम लोग कोशिश यही करते हैं, या कोई भी प्लेयर्स हो, कि हमेशा कोशिश करता है अपना 100% देने का। परफॉर्मेंस कभी होता है कभी नहीं होता है, बट आपको ग्राउंड में एक दिखता है कि प्लेयर कैसा अपने आप से पूरा 100% दे रहा है, कि कोई 50% दे रहा है, कोई नहीं देने मांग रहा है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे ग्राउंड में करते हो। तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन में कितना सीजन हो गया है? मेरा ये लगा के 8 साल हो गया है फर्स्ट डिवीजन खेले। तो 8 साल में तो बहुत कोच भी जानते हैं, बहुत प्लेयर लोग भी जानते हैं तुमको। तो तुम्हारा जब लो फेस चलता है, कोई सीजन अप टू द मार्क नहीं गया या फिर क्लब रेलीगेशन खेला, तो उस समय उस फेज में ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई मतलब प्लेयर या कोच है जो सपोर्ट किया? हाँ, मेरे जो कोचेस है, मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं विवेकानंद में प्रैक्टिस करता हूँ, पालन चटर्जी में करता हूँ और संबरन में भी करता हूँ। कभी जहाँ विकेट खाली रहते हैं तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ के कोचेस है सपोर्ट करते हैं। कभी जो कोई भी एस्पेक्ट में, बॉलिंग हो या बैटिंग में, कुछ टेक्निकली इशू हो रहा है या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, तो उन्होंने हेल्प किया है। तो उन्हीं से बात करता हूँ, वहाँ के कोचेस है। कोच लोग से मतलब क्या सीखने को मिला है बंगाल कोचेस और क्लब कोचेस में? बंगाल बंगाल तुमने जब खेला या फिर जब स्टार्टिंग में गए 16 नेट में, तो ऐसा क्या डिफरेंस आता है उनका गाइडेंस में? डिफरेंस तो है थोड़ा आपको, क्योंकि वो लेवल थोड़ा अलग है और नॉर्मल क्लब लेवल थोड़ा अलग है। तो आपको लेवल कंपेयर करने के लिए तो आपको कोचेस भी उस हिसाब से मेंटली बूस्ट करते हैं। फिर ज़्यादातर आप टेक्निक क्या है, उस लेवल में ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं होते हैं, या आपको जैसे आपको पता होना चाहिए कि किस कैसे खेलना है, तभी आप उस जगह पे पहुँचे हो। तो मेंटली जो कोचेस अच्छे होते हैं वो मेंटली बूस्ट करते हैं, बताते हैं कि इस लेवल कैसे रन करना है, कैसे खेलना है। तो बस उनका ही एक अलग है डिफरेंस। আমাদের বিগিনার প্লেয়ারদের জন্য, যারা সবসময় বলে যে বেঙ্গল খেলতে হবে, লোগো চাই, তো তোমাকে বেঙ্গল জার্সি পাওয়ার আগে কটা রিজেকশন ফেস করতে হয়েছে 16-19 সব নিয়ে? রিজেকশন তো পেয়েছি। আন্ডার 16-এ যখন ম্যাচ ট্রায়াল দিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানে রিজেকশন পেয়েছি। তারপরে প্রবলসে ছিলাম, তখনও ম্যাচ পাইনি। 19-এ রিজেকশন পেয়েছি। 23-তে 25 যখন হয়েছে তখনও রিজেকশন পেয়েছি। তো রিজেকশন তো লাইফে লাগাই আছে, এখনও বিপিএলে চান্স পাইনি তো এখনও রিজেকশনই পাচ্ছি। দেখো, আমি নিজে পারফরমেন্স করাই যাচ্ছি। দেখো, আমার হাতে তো নেই কিছু করা, সিলেক্টরদের আছে আছে ওখানে সিএবি লোক আছে, ও সবাই পারফরমেন্স দেখছে। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम 23 का जर्सी जब मिलने का बात हुआ, जब फर्स्ट टाइम बुलाया सीएबी में मिड सीजन से, तो मिड सीजन में ऐसा क्या परफॉर्मेंस था कि अचानक तुमको टीम में लेना पड़ा सीएबी को? मैं पहले प्रोबल्स में था, तो उसके बाद थोड़ा फैमिली इशू के वजह से मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब था, मम्मी थोड़ा डेथ कर गई थी, तो इसके वजह से मैं बाहर हो गया था। तो उसके बाद मैं सीज़न चल रहे थे हम लोग का पूरे मिड सीज़न में, तो मैं लगातार 3 मैच में 18 विकेट लिया था। लगातार 6-6 करके 3 मैच में विकेट लिया था। तो उन्होंने लास्ट 2 मैच के लिए मुझे बुलाया गया था। वहाँ पे जब मुंबई जाना था तो और पता चला कि मैच खेल रहे हो, तो वो मैच खेलने का एक्साइटमेंट तो था ही, तो वो एक्साइटमेंट तो एक था, ऊपर से नर्वसनेस भी होगा क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट डिवीजन से सीधा बोर्ड मैच, वो भी रेड बॉल। तो वो मेंटेलिटी क्या था उस एक रात पहले, माइंडसेट क्या था? उस समय माइंडसेट कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अपने कोचेस से बात किया, अपने फैमिली से बात किया, तो ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था, क्योंकि जो बचपन से चाहते थे खेलना मैचेस, बंगाल को रिप्रेजेंट करना, तो वो हो रहा था। तो ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था, बस था कि अच्छा करना है, जो भी मौका मिले, कभी भी मौका मिले, बैटिंग मिले, बॉलिंग मिले, या ग्राउंड पे ऐसा दिखाना है कि रन आउट करने मिले, या कुछ भी कोशिश करना है कि अपना 100% देने का मेंटेलिटी था कि हम कुछ भी करें तो अपना 100% दें।
तो बस यही दिमाग में था कि मुझे कुछ भी हो मुझे 100% देना है, और बाकी उतना मैं सोचा नहीं था। तो बोर्ड मैच खेल के आने के बाद क्लब मैचेस इजी लग रहे हैं थोड़े? ऑब्वियसली इजी तो लगेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ मैचेस थोड़ा अलग है, वहाँ पे ग्राउंड्स अलग है, विकेट्स अलग है। लास्ट ईयर कितना विकेट मिला था फर्स्ट डिवीजन में? लास्ट ईयर मेरा विकेट था 44, और इस साल? इस साल है मेरा 50। ফার্স্ট ডিভিশনে তোমাকে উইকেট কতটা হেল্প করেছে? যে 50 উইকেট নিয়েছে সবাই বলছে যে উইকেট খুবই ঘূর্ণি ছিল, এটা কি সত্যি? এমনি উইকেট ছিল না, ভালো উইকেটও ছিল। এমনি না কি সব উইকেটে ঘূর্ণি ছিল, সব উইকেটে ভালো উইকেটে ছিল। ইনিশিয়ালি ভালো উইকেট ছিল, মাঝখানে যখন একটু গরম পড়েছে তখন একটু ঘুরছিল, পরে সব উইকেট না, একটা দুটো মাঠে ঘুরছিল, বাকি সব মাঠে ভালোই উইকেট ছিল। হোপই পেয়েছি। ये जो इम्प्रूवमेंट आया है इसका कितना तुम क्रेडिट देना चाहोगे वो बोर्ड मैच की वजह से? क्रेडिट तो देना चाहूंगा, क्योंकि लिए वो मेंटेलिटी आपको समझ आता है कि उस लेवल में और इस लेवल में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे लेवल पहुँचने के लिए आपको इस लेवल में आपको अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा ही नहीं बाकी सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करता हूँ कि इस लेवल में अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करूँ, हर मैच में मैन ऑफ द मैच लूँ या मैच को जिताऊँ, अपना 100% दूँ। बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारा हाथ में तो मेहनत ही करना है। अब तो ग्रुप ए का अलग हो गया है, हर मैच वनडे भी, टी20 भी और लीग भी, और बी ग्रुप का अलग हो गया है। तो पहले जब जूनियर थे, मतलब 2-3 साल पहले जब सब मर्ज होके खेला जाता था, जेसी मुखर्जी वनडे, तो सोचो तुम्हारा मैच कल भवानीपुर के साथ था, बड़ा टीम के साथ, तो तुम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड रहते थे? वो माइंडसेट क्या था बिफोर हाई प्रेशर मैचेस? माइंडसेट मेरा यही था कि बड़ा टीम है तो उसको उसके साथ परफॉर्म करना, तभी इंसान लोग पहचानेंगे तुमको। ऑब्वियसली सब बात है, आप कोई छोटे टीम से खेल रहे हो, कोई बड़ा टीम के संग मैच है, तो आप परफॉर्मेंस करना आपको मैटर करता है। तो अब मेरा मेंटेलिटी यही था कि मुझे बड़े टीम के संग परफॉर्म करना है, और तभी लोग पहचानेंगे, तभी आपका नाम होगा। तो यही कोशिश कर रहा था कि मैं बड़े टीम के साथ मैच में कभी मौका मिले तो मैं अपना 100% दूँ, और परफॉर्मेंस मेरे से परफॉर्मेंस निकले जो मैं टीम को जिता पाऊँ, तभी सब मुझे पहचानेंगे, तभी मेरा कुछ मेरे लिए कुछ होगा कि मैं अच्छे क्लब खेल पाऊँ या अच्छे बंगाल रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो मेरा यही कोशिश था कि मुझे 100% देना है। बंगाल नेट्स और क्लब नेट्स में जब बाहर के प्लेयर आते हैं, जब फुल फ्लेज में प्रैक्टिस होता है, कोई तो 1 इंच भी जगह नहीं देना चाहता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेकंड डिवीजन हो, फर्स्ट डिवीजन हो, 16 बंगाल हो या 19 बंगाल हो, डिफरेंस क्या है? पहला नंबर बात तो बाहर के प्लेयर को अलाउ नहीं करना चाहिए। अब ये सीएबी के ऊपर है, उन्होंने नया रूल्स भी निकाला है। 3 भी नहीं करना हिसाब चाहिए? से तो नहीं करना चाहिए, अब उनके ऊपर रूल्स क्या निकालते हैं, अभी तो नए रूल्स आ रहे हैं, पता नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बंगाल प्लेयर या जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग को कहीं ऑप्शन नहीं मिलता है कोई भी दूसरे स्टेट में, तो हम लोग को बंगाल में तो सबको अलाउ है, 3 अलाउ है, उनको अच्छा से अच्छे प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि खराब प्लेयर्स है, अच्छे प्लेयर्स है सब। बस पर ठीक है अपना जगह पर, बंगाल को जो सीएबी में लोग हैं उनको देखना चाहिए इस मैटर को, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं जो इस मैटर में देखते हैं और बंगाल क्रिकेट को आगे करना चाहते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि उनसे आशा करता हूँ कि उन लोग इस मैटर को देखें और ये रूल्स लेके आए कि बंगाल क्रिकेट और आगे जा पाए, और हम जैसे प्लेयर्स को, जो हम जैसे बहुत सारे प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं पर फिर भी कहीं जगह नहीं है, तो यही कोशिश करते हैं कि इसको देखे और हम लोग को जैसे प्लेयर को थोड़ा ऑप्शन मौका दे कहीं पे परफॉर्म करने का, या बीपीएल हो या पीसीएन हो या कोई भी क्रिकेट लेवल में हो जो बंगाल कराना चाहता है। 23 का बोर्ड मैच में जो डेब्यू मैच था अगेंस्ट विदर्भ, उसमें हर्ष दुबे के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला, जो इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू किया। तो उससे क्या, उसको कितना ऑब्जर्व किया उस समय? तो वो आईपीएल से दूरी था और उस समय वो रणजी ट्रॉफी में 70 विकेट भी नहीं लिया था इस साल जैसा, तो उस समय क्या साइंस था उसमें? जब लास्ट ईयर मैंने उसको खेला तो मुझे अलग लगा, क्योंकि उसका मेंटली भी बहुत स्ट्रांग था और एक जगह नहीं छोड़ रहा था एज अ बॉलिंग में, और बैटिंग में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि बड़ा खेलेगा। तो मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि इसके अंदर में दिख रहा है, मैंने उसको फेस किया है, क्वालिटी है, तो शायद 1-2 साल में वो खेलेगा। तो वही हो रहा है, 1-2 साल में वो खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो आगे खेल सकता है। बोर्ड मैच के दौरान किन टीममेट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया था? सब मेरे दोस्त यार ही है, ऐसे नहीं है कि किसी स्पेशली है, बट ऐसे दोस्त यार ज़्यादातर
जैसे हम लोग ग्रुप में मतलब थोड़ा जो मेरे ज़्यादा दोस्त यार थे, मतलब जिससे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, इरफान था, सुखमीत था, दिलशाद था, अमन था और रोहित भाई थे, तो थोड़ा उनसे बात करता था, ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करते उन लोग उनके साथ ही स्पेंड करते थे। कोलकाता मैदान में which ऑफ स्पिनर बैट्समैन डू यू लुक अप टू? मुझे मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा जब भी मैं मौका मिलता है तो मैच देखने का या वीडियो देखने का, तो मैं आमिर खानी भाई को बहुत फॉलो करता हूँ। वो बहुत बड़े लेजेंडरी बॉलर है और बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी उन मौका मिले तो मैं उनकी बॉलिंग देखूँ, बहुत कुछ सीखने मिलता है। उनके अगेंस्ट में भी खेला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखने का अभी भी कोशिश करता हूँ। और मैं उनको कोलकाता लीग में सामने उनको देखता हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं टीवी में देखने तो मैं अश्विन को देखता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ अश्विन को। उसका जो माइंडसेट है वो कैसे अडेप्ट करता है और अलग विकेट में क्या डालता है, बहुत सारा चीज़ें मैं देखता हूँ, तो उनका भी अडेप्टेशन मैं ट्राई करता हूँ कि देखूँ। अच्छा, तो बहुत सारे ऑफ स्पिनर हैं, ए ग्रुप में बढ़िया बढ़िया है, लेकिन टीम एक ही है सीनियर, और तुम भी अभी सीनियर के क्राइटेरिया में हो क्योंकि तुम्हारा जूनियर क्रिकेट तो अभी ख़त्म हो गया है। तो एक कंपटीशन किसको मानते हो ऑफ स्पिनर बैट्समैन में? कंपटीशन तो ऐसा कोई नहीं है, कंपटीशन तो खुद पे रखना चाहिए इंसान, और मैं खुद पे ही रखता हूँ। मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, और बाकी तो मेरे हाथ में नहीं है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। और जो सिलेक्टर चाहेंगे, जिसको खिलाना, जिसको मौका देना चाहेंगे तो उनको देंगे, जो परफॉर्म करेगा। मैं बस आशा करता हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं परफॉर्म करूँ, मुझे मौका मिले, परफॉर्म करूँ और मैं टीम को जिता सकूँ। अच्छा, ऐसा क्या एक मोमेंट है जिसको ग्राउंड में मैच के समय तुम्हारा कोई स्पेशल बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसको तुम वापस रिलीव करना चाहो? हाँ, मौके तो ऐसे बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब सिचुएशन क्लब मैचेस में, मैंने एक मैच में बहुत लास्ट ओवर थे, 4 रन बचाना था तो मैंने बचा दिया, तो उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ। उस दिन कुछ अलग लगा कि मैं कुछ खेल सकता हूँ। तो बहुत सारे मैचेस थे, बैटिंग में भी एक मैच में 17 रन चाहिए था, तो मैंने बनाया था लास्ट ओवर में। तो यही सब है कि जब भी कोशिश करता हूँ कि मैच जिता सकूँ। इतने सारे स्पेशल मोमेंट्स में, इतने दिन से खेल रहे हो, इतने सारे अचीवमेंट में, कभी ऐसा लगा है कि इतना लो फेज आए कि फील लाइक गिविंग अप? हाँ, 2023 में जब मम्मी का डेथ हुआ तो उस समय बहुत लो फेस में था। उस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट छोड़ दूँ, कुछ और करूँ। क्योंकि लिए क्रिकेट ऐसा अभी हुआ है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि लिए क्रिकेट से कुछ बन नहीं रहा है, ना सिलेक्शन हो रहा है, ना वैसे क्लब्स मिल रहे हैं जहाँ पे मौके मिले, या वैसा अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल रहा है। तो उस समय ऐसा लगा था। अभी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ, तो देखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि सिलेक्टर्स को कि मुझे मौका दे, और आगे चल के कि कहीं पे बीपीएल खेलने का मौका मिले और बंगाल रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, कि मैं अपना घर का सिचुएशन और थोड़ा सुधार पाऊँ। लोकल क्रिकेट में, हमारे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्रिकेट में, ऐसा क्या है अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो हर प्लेयर को, पेस बॉलर हो, ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट हैंड स्पिनर हो, सबको फेस करना होता है? ट्रूथ है कि यहाँ पे कोई मौका देते नहीं है, आपको मौका बनाने पड़ेंगे। जब भी मौका मिले, प्रैक्टिस मैच हो या प्रैक्टिस में हो, तो आपको वहाँ पे अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। और हमेशा वही हम लोग भी, या हम मैंने भी वही कोशिश किया है कि जब भी मौका मिले तो मैं कोशिश करूँ कि परफॉर्म करने का कोशिश करूँ। जबकि कोई देखे तो मुझे एक मौका दे, बस एक मौका का उम्मीद है कि कहीं भगवान एक मौका दे तो मैं कर पाऊँ। तो उम्मीद वही है कि आगे भी चल के भी रणजी ट्रॉफी है। अभी एज ग्रुप तो मेरा ख़त्म हो गया है, तो आगे चल के 23 तो अभी है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे उम्मीद मिले, सीनियर्स में नाम आए तो मुझे प्रैक्टिस करने का या प्रैक्टिस मैच के मौका मिले, तो मैं वहाँ परफॉर्म कर पाऊँ, तो मैं सिलेक्टर्स के नज़रों में आ पाऊँ, जो मुझे सिलेक्ट करे और मैं बंगाल को मैच जिताऊँ, बंगाल खेलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। तो लोकल क्रिकेट पॉलिटिक्स लगता है तुम्हारे क्रिकेट ग्रोथ को हैम्पर किया है कभी, या सिलेक्शन में? पॉलिटिक्स तो हर जगह है, आप कोई भी फील्ड में जाइएगा, ऑफिस में हो या घर, हर जगह पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो होता ही है, बस अब कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में तो पॉलिटिक्स है नहीं।
बस आपका हाथ में मेहनत है और आपका काम है, आपको जो चीज़ करने आता है, खेलने आता है, आपको मैच जिताने आता है, तो बस आप वही करते रहिए। बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, अब उनकी मर्जी जैसे आपको करे। हार्शेस्ट फीडबैक आफ्टर अ मैच, लूजिंग कॉज और अ विनिंग कॉज, कोई कोच से क्या मिला है? विनिंग ऐसे कोचेस तो हर जगह हर लेवल में अलग होते हैं, हर लेवल में अलग तरीके के कोच मिलते हैं। तो हर सिचुएशन में अलग कोचेस, कभी जीतता हो तो उन लोग खुश होते हैं, जब हारता हो तो हमें भी बुरा लगता है। तो सीखने को मौका है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें हार जाए या गिर जाए या टूट के उस दिन ख़त्म है। आप हारते हो तो सीखते हो, आप जीतते हो तो भी सीखते हो। आपका मेंटली है, आप कैसा सोचते हो, डिपेंड करता है उस पे कि आप किस पे क्या सोच रहे हो। आप हारते हो तो भी सीखते हो, जीतते हो तो भी सीखते हो। तो आपको सीखना ज़रूरी है। कोचेस तो आपको सिखाने के लिए, उनका मेन मुद्दा तो उनका काम है सिखाने के लिए। तो उनका काम है, वो अपने करते हैं। हम लोग के भी काम वही है कि हम लोग उनसे सीखे, हमारे गुरु समान है, तो उनसे सीखना ज़रूरी है और फिर वही इम्प्लाई करे अपने मैचेस में, जो टीम को जिता पाए। वो क्लब क्रिकेट हो या कोई भी लेवल हो, आपको मैच जिताना कैसे आना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा। जो कर पाएगा वही ऊपर लेवल खेल पाएगा। कोई क्रूशल मैच में चोक होने का रिग्रेट है? रिग्रेट तो है, बहुत सारे मैचेस ऐसा गया है कि जहाँ पे मैं सोचा था कि मैं परफॉर्म करूँ, बट कोई भी कारण से परफॉर्मेंस नहीं होती है। हर मैच आपका ऐसा नहीं है कि हर मैच आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वो सेमीफाइनल हो या फाइनल्स हो, जहाँ इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, वहाँ पे कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे मैचेस में मेरे भी, बहुत सारे क्लब क्रिकेट में भी रेलीगेशंस मैचेस हो गए या क्लब के ऊपर मैचेस में हो गए, तो बहुत सारे ऐसे मैचेस में मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया। तो है, थोड़ा रिग्रेट्स तो है, बट कोशिश आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपना मेहनत ही कर सकते हैं। तो रिग्रेट्स ऐसा नहीं है कि रिग्रेट्स बहुत सारा है, बस थोड़ा उससे सीखने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट दिन जब भी मौका मिले तो उसको गलती को दोबारा ना ही करने का कोशिश है। लोकल क्रिकेट में देखा जाए, डिवीज़न क्रिकेट स्पेशली, मुंबई हो, बेंगलोर हो, या फिर उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं भी हो, यहाँ पे जितना पैसा है वहाँ पे नहीं है। लेकिन एज ए लोकल प्लेयर तुमको लगता है कि यहाँ पे इनफ रिस्पेक्ट और इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिससे आदमी घर चला सके अपना खेल के? सिर्फ सोचो कोई ए ग्रुप का रेगुलर प्लेयर हो, तो क्या वो खेल के चला सकता है? उसका अर्निंग कितना हो जाता होगा? आप जैसे इलीट प्लेयर है, तो जो एकदम टॉप प्लेयर्स है, तो बेसिकली आप जब ऐसे टॉप प्लेयर्स है तो बेसिकली सबके नौकरी हो जाते हैं, सबको कहीं ना कहीं यहाँ कोलकाता में कहीं ना कहीं जॉब्स ऑफर आ जाते हैं। तो जिनके जॉब्स है उनके लिए तो बेटर है, उन लोग तो अपना घर या अपना फैमिली रन कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल प्लेयर के लिए मुश्किल है रन करना, सिर्फ क्रिकेट खेल के रन करना कोलकाता में बड़ा मुश्किल है। क्रिकेट के लिए रिलेशनशिप्स, एडुकेशन, ये सब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब तक तुम्हारा जो जर्नी रहा है, क्या वो वर्थ इट रहा है अभी तक? नहीं, सेक्रीफाइसेस तो हर फेस में अभी भी सेक्रीफाइसेस है। और जब से मम्मी का डेथ हुआ है तो तब से तो सेक्रीफाइसेस हर चीज़ में होती है, फैमिली में हो या हर जगह पे हो। तो अभी तक फ़िलहाल तो वो वर्थ इट नहीं है, पर आगे चल के उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि हो जाए। एक टफ कॉल है कि इफ़ यू डोंट मेक इट अप टू द टॉप लेवल, तो तब बैकअप प्लान क्या है? ऐसा अभी कुछ बैकअप प्लान नहीं सोचा हूँ, अभी बस क्रिकेट खेलने का कोशिश है। अभी चाहता हूँ कि अभी बीपीएल मिले, मौका मिले, आगे चल के रन सीनियर में मौका मिले। बस कोशिश है कि कहीं पे भी मौका मिले परफॉर्म करूँ, जो लोग जाने, और आगे चल के मैं आईपीएल खेल पाऊँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। उस हिसाब से मेहनत करता हूँ। अब मेहनत करना हमारा काम है मेहनत करते रहना। बाकी अब सिलेक्टर्स और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अब मेरे हाथ में तो बस मेहनत है। बस अब इतने दूर तक जब क्रिकेट लाया है, तो अब आगे चल के वही कुछ करेगा। तो बस उम्मीद है कि क्रिकेट के अलावा तो और कुछ सोचा नहीं हूँ, तो वही कुछ कर दे। हम लोग के कलकत्ता मैदान में क्या टैलेंट अकेले इनफ है? टैलेंट इनफ तो नहीं है अभी जैसा क्रिकेट हो गया, पहले क्रिकेट ऐसा नहीं था, बट अभी तो बहुत पॉलिटिक्स आ गया है। पॉलिटिक्स हो, सेकंड डिवीजन हो या क्लब क्रिकेट में हो या जूनियर्स लेवल में हो, पॉलिटिक्स तो हर जगह आ गया है। तो आपको बस, आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में है नहीं, एसोसिएशन के हाथ में है। अब एसोसिएशन जैसे आपको बोलेगा करने, तो आप उस हिसाब से ही कर पाओगे। तो अब बाकी सब एसोसिएशन में बैठे हैं लोग, उनके ऊपर है कि वो कैसे
कैसे रन करते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं एज अ प्लेयर कि हमें मौका मिले और हम लोग कोशिश करें कि आगे चल के अच्छा करें। अपने से कम परफॉर्मेंस वाले प्लेयर लोग को देख के जब वो खेलते हैं उस टीम में जहाँ तुम खेलना चाहते हो, जब वो बंगाल कैप पहनते हैं, ऐसा कभी देखा है तुमने? देखा है तो कैसा लगता है? बुरा तो लगता ही है, क्योंकि लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि परफॉर्मेंस नहीं करते हैं पर उनको मौका मिलते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं, अब उनको मौका मिल रहे हैं तो उन लोगों को परफॉर्मेंस करे तो ज़्यादा बेटर है। और हमारे हाथ में तो नहीं है वो चीज़। हमें जब मौका मिले तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि हर जगह परफॉर्म करने का। तो क्लब क्रिकेट में भी वही है, मौका मिलते हैं तो परफॉर्म करता हूँ। आज तक परफॉर्मेंस के बावजूद ही मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आपके शो में भी आया हूँ। तो बिना परफॉर्मेंस का आप मुझे बुलाते भी नहीं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर जगह जहाँ पे भी जाऊँ तो परफॉर्मेंस करूँ। अच्छा, इस साल जो पीसन ट्रॉफी हुआ उसका तुम्हारे पास कोई लेटर का कुछ आया था, वो क्या था? पीसेन का टूर्नामेंट था तो पहले नाम था मेरा, तो उसके बाद पता नहीं कुछ इशू हुआ तो उसके बाद मेरा नाम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं था। तो कोई बात नहीं, मेरे हाथ में तो वो चीज़ है नहीं, उसके बारे में मैं सोचना बंद कर दिया। उसी दिन सोचा था, उसके बाद से फिर मैं सोचना ही हो गया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अपना उम्र का जब लोग, हम लोग की उम्र के, सोचो यशस्वी जायसवाल है, वो अभी बी कॉन्ट्रैक्ट में है, ए या बी कॉन्ट्रैक्ट में है, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो उनसे क्या सीखने को मिलता है? फिर वो जब खेलते हैं तो घर में कैसा लगता है बैठ के उनको देखने में? बुरा तो लगता ही है कि एज अ प्लेयर आप बचपन से ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है, बचपन से ड्रीम था, 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेला हूँ। तो ड्रीम है कि एक लेवल खेलूँ, कम उम्र में जितना जल्दी खेलूँगा, जितना जल्दी हो तो उतना मौका मिलेगा, स्पैम ऑफ क्रिकेट आपका बढ़ेगा, आगे चल के भी क्रिकेट आप ज़्यादा खेल सकते हो। तो बुरा तो लगता है थोड़ा बहुत, बट उसने उसने वो मेहनत किया है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने परफॉर्म किया है, इसलिए वो आज उस जगह पे है। तो हमें भी उस चीज़ का उम्मीद में हर वक्त मेहनत करना है और मैं वही करने का कोशिश करता हूँ कि मैं मौका मिलेगा तो बस मुझे परफॉर्म करना है। जब भी मौका मिले तो मैं परफॉर्मेंस का वेट करता हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं परफॉर्म करूँ। परफॉर्म करने के लिए लगता है प्रैक्टिस, सभी करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में जो बारिश का जो सीन है, अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे बारिश में तुम्हारा क्या रहता है रूटीन? बारिश में जब सीजन खत्म होते है तो थोड़ा 1-2 महीना थोड़ा रेस्ट नाम का तो कुछ चीज़ नहीं है। एज अ प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर जब आप खेलते हो तो रेस्ट तो कुछ होता नहीं है। बस आप थोड़ा मेंटली थोड़ा डाउन होते हो कि थोड़ा रिलैक्स करते हो मेंटली। अब बस फिजिकली आपको ट्रेनिंग और जिम कंटिन्यू रखना पड़ता है, और वो करने के लिए तो आपको कहीं रेनिंग सीजन का ज़रूरत नहीं, आप जिम में भी ट्रेनिंग कर सकते हो। आप बस जब ग्राउंड में हो तो बारिश में भी ट्रेनिंग कर सकते हो। थोड़ा है स्किल्स, यहाँ कोलकाता है तो यहाँ पे बारिश ऑफ सीजन में होता है, तो आपको कहीं ऐसा जगह में जाना है जहाँ पे इंडोर हो, जहाँ पे सीमेंटिंग विकेट हो, थोड़ा वहाँ पे आप अपना अपना स्किल्स में आप डेवलप कर सकते हो। तो कोशिश यही करता हूँ कि कहीं पे भी मौका मिले, जहाँ पे भी खाली रहे, नेट्स खाली रहे, जहाँ पे भी ट्रेनिंग और ऑप्शन करने का मौका मिले तो कर पाऊँ। मैं स्कूल क्रिकेट जब खेलता था तो मेरे साथ विशाल था, हमारा कैप्टन था। तो बहुत बड़ा प्लेयर था हमारा, बैट भी करता था, 100 रन करता था, 200 रन करता था, विकेट लेता था। तो स्कूल टाइम का कोई मेमोरीज याद है अभी? मेमोरीज तो बहुत सारे याद है, आपके संग तो ज़्यादा मेमोरीज याद है। आप तो बेस्ट बॉलर हुआ करते थे हर जगह। तो बस उस समय उम्मीद नहीं था कि उस समय क्रिकेट अच्छा था, ज्यादा सोचते नहीं थे, परफॉर्मेंस निकल के आता था। उस समय क्रिकेट अलग लेवल का क्रिकेट था। उस समय इतना इंसान एंजॉय करता था। अभी जब प्रेशर आता है तो एंजॉयमेंट आदमी भूल जाता है। तो वही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को एंजॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना में एंजॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जैसे एंजॉयमेंट करके बॉल डालते थे, जो अंदर डालते थे और बाहर निकालते थे 15-16 साल की उम्र में, तो अलग लेवल के क्रिकेटर थे आप तो। तो अभी पावर ऑफ बैटिंग ओवर बॉलिंग कितना है? अभी तो बैटिंग जैसा क्रिकेट वाइट बॉल आ गया, तो आपको बैटिंग बहुत ऊपर करना है। बॉलर्स के लिए तो कुछ है नहीं है, पावर प्लेज है, फिर सादा बॉल है, कुकाबुरा बॉल बहुत भागता है। तो बैटिंग में आपको बहुत पावर चाहिए। और जो भी देखिए, आज विराट कोहली को देखिए, रोहित शर्मा, या जो T20 में भी रिटायरमेंट लिए है, बट अभी जो अपकमिंग क्रिकेटर्स है जहाँ पे जैसे तिलक वर्मा हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, रिंकू सिंह हो गए, जो वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट है,
तो उन लोग बस पावर है, हिटिंग है उन लोग। बस क्या है कि वो वाइट बॉल है बाहर मारने देखते हैं, बस बाहर है। अभी क्रिकेट ऐसा हो गया कि आपको स्टेडियम के बाहर मारना है, जितना मार सकते हो, जितना मार सकते हो, जितना आप मारोगे उतना आप जल्दी सिलेक्शन भी होगा आपको। जितना क्रिकेट आपको अभी, क्रिकेट रेड बॉल की तरह नहीं है पहले कि 1 2 3 वाला, अभी है 1 2 6, ऐसा क्रिकेट आपको खेलना है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो, अपने आप को तुम अगला 5 साल या अगला 2 साल में, एक एक दिन तो बहुत ज़रूरी है, एज क्रिकेट तो अब है नहीं, अंडर एज क्रिकेट, तो लास्ट ये अगला 2 साल में कहाँ देख रहे हो अपने आप को? एक्सपेक्टेशन खुद से यही है कि 2 साल के अंदर रणजी ट्रॉफी खेलूँ और आईपीएल खेलने का है, और वहाँ पे जब मौका मिले तो मैं परफॉर्म करूँ, और होपफुली 2 3 साल के अंदर मैं ब्लू जर्सी में रहूँ। तो मेरा एक अंदर से ड्रीम है, बचपन से ड्रीम है, और ड्रीम पूरा हो। बस आप लोग दुआ करिए, आप लोग प्यार दीजिए, जो मैं परफॉर्मेंस करूँ और मौका मिले मुझे, और इंडिया का जर्सी मैं जल्दी से पहन पाऊँ। 23 খেলে 23তে পারফর্ম করে একটা ম্যাচই শিওর, বাট একটা ম্যাচে পারফর্ম করে তারপর ট্যুর ম্যাচে ক্যাপ্টেন ছিল বিশাল। ট্যুর ম্যাচের পর হারিয়ে যাওয়ার পর কতটা হ্যাম্পার করে একটা প্লেয়ারকে, আর ওই হ্যাম্পার হওয়ার পরও আবার কামব্যাক করে আবার বসে থাকা, কতটা কতটা ব্যাকল্যাশ থেকে যেতে হয়, এটা আমরা জানতে পারলাম আজকে পডকাস্টে। তো বিশাল, দিস ওয়াজ দ্য শো। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। You are the first guest who showed belief towards me, and hopefully फिर मिलेंगे वापस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप लोग प्लीज़ इस शो को देखिए, और ये शो बहुत अच्छा है, और कोलकाता प्लेयर्स लोग के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी आएंगे आगे चल के, और बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले भी है। तो आप लोग प्यार दीजिए, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, और जितना हो सके आप लोग से जितना भी करे तो आर्यन को प्यार देते रहिए। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ওয়াজ অল ফর টুডে। আপনারা আপডেটেড থাকুন, দেখতে পারবেন আরও ভেটারান ক্রিকেটার্সরাও আসবে, নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবে। মেনলি আমার এটা কোনো কাউকে ছোট করার শো না, এটা আমাদের ইয়াংস্টারদের প্রমোট করা আর ইয়াংস্টারদের সাপোর্ট দেখানোর একটা মোটিভ। তো stay updated and visit the profile of Crick Insiders. You will get to know the unknown. Thank you.